inheriting equal share of property. Meanwhile, Muslim women cannot inherit the same as their male counterparts, etc. The second thing that it does is touches upon legal pluralism in India plus abroad. India in terms of the Mughal and British era, and abroad in terms of the Ottoman Empire, and current day Israel, and how they've still retained separate personal laws for religious communities. And lastly, then it illustrates how UCC is the norm all over countries within the world, and how it is viewed as a hallmark of modernity, with special emphasis on how even Muslim states have UCC in place. And lastly, it concludes that debates around UCC are only democratic and should not be shied away from. Okay, very good. Um, and like you have covered almost every point of the paragraph. कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? Anything? So, Hmm. in a way, Hmm. where they have given the example about Muslim majority countries which have adopted UCC, I felt like they were trying to actually highlight that yes, where there is a majority, for example, a Muslim majority country is adopting UCC. So in India also there can be a tendency to become a more Hindu majoritarian country with the adoption of UCC. That's what they were trying to highlight with this statement. I don't think so. इसमें ऐसा भी हो सकता है कि they are hiding the fact, हो सकता है कि they might be hiding, or the writer might be hiding the fact कि जो इनका UCC है, it's not as universal as or as modern as what we are thinking of or what Western country has applied. Probably हो सकता है कि इनके rules they are more aligned towards the Muslim Shariat, and they have made it uniform for all the other communities or minorities they are living. Yes, sir. तो ये भी तो हो सकता है ना? Sir, तो exactly. That's what I'm saying. With the United States, they're probably trying to uh, build a contrast that it is a sign of modernity, but that's what they're trying to showcase. Is it actually a sign of modernity with the Muslim majority countries that they've mentioned specifically? हम्म, So they're trying to build a contrast that is uniform civil code actually a sign of modernity or not? That's what तो this probably paragraph इस questions. पूरे पैराग्राफ में दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग कि जो यूसीसी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं वो क्या हो सकते हैं फॉर Hmm. डिफरेंट कंट्रीज. Hmm. तो ये चलो, ये तो हिडन फैक्ट है, बट मतलब दैट इज नॉट देयर, तो वी कैन नॉट हेल्प फॉर Hmm. दैट. दीक्षा, तुमने क्या बताया? Through this statement, several Muslim majority countries, what this paragraph is basically trying to highlight is that we know for a fact that India is a Hindu majority country, and there are countries with a specific religion in majority who are trying to make an effort in adopting UCC, which is abolishing certain legal right, the certain legal distinctions, which basically discriminates against women, or gender distinction, class distinction. So it is trying to highlight a silver lining that India, being a Hindu majority country, has a scope in adopting UCC. मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ठीक है, ऐसा देखने में लग रहा है, बट व्हाट इफ दैट द यूसीसी दैट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैज अडॉप्टेड is not as modern, as liberal, or is not inclusive. So can I add one thing to this? Mm-hmm. Like I read a book on Islamic feminism by Margaret, Mm. and they basically talked about how they have changed the personal Muslim law in Turkey, Tunisia, and Azerbaijan. They compared the personal Muslim law, and it was Mm. structured in a way that favored the women majority in the country. So I don't think that it is discriminatory in nature adopting UCC in these Muslim majority countries. Okay, मतलब एटलीस्ट दिस पैराग्राफ डजंट से दैट, तुम्हारे पास कोई बैकग्राउंड का रेफरेंस है तो विद दैट यू कैन उस पे ये कॉम्प्रिहेंड कर सकती हो वैसे, है ना? और किसी को Could कुछ ऐड करना है इसमें?
So I think Any whatever had to be you added might was not have to take anything from this line while answering the question. So even it is hidden, may not change our answer or anything. बिकॉज मैंने पहले भी बताया लास्ट में, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, इट इज नॉट देयर टू फेच द आंसर फ्रॉम दिस पैराग्राफ। ये आपके थॉट प्रोसेस को नैरो डाउन करने के लिए दिया जाता है कि आप इस अलाइनमेंट में सोचें, ठीक है। सो एवरी टाइम व्हेन यू रीड सच काइंड ऑफ, मतलब व्हेन यू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर देयर इज अ पैराग्राफ and then question, so the question may not be based on paragraph only. So you have to take thoughts from the paragraph, you have to take the dimensions from the paragraph, and then you will have to write your own thought and whatever they have asked in that question, ठीक है। तो अब इसमें कोई कुछ और ऐड करेगा, एनीथिंग? दीक्षा, तुम, मान्या? And if you want to मतलब retell the story in your own words, you can also do that. आशुतोष, will you try? यस सर। हाँ, बताओ। सर सर ओपिनियन देना है कि वी कैन नहीं, जस्ट जस्ट अभी पैराग्राफ को ही वो करना है, एक्सप्लेन करना है कि what are the things that you found in paragraph which you seems that it is critical while talking about this topic. सर सो it compared between Hindu personal law and Muslim personal law, like how a male can marry one woman in Hindu personal law, whereas in Muslim law there is a system of marrying 4 women. And it also drew some criticism, like how UCC can be a symbol of Hindu majoritarianism, and how it will demolish the minority right, and it will quash all the separate personal law which exist till date, and also all the laws which are related to divorce, marriage. And it also talked about legal pluralism, which went back towards British era, where every चलो एक religion. एक्सप्लेन करो, what do we mean by legal pluralism? Okay. So, sir, it means at the ancient time, all the religion were given नहीं, मतलब liberty. for defining legal pluralism, you don't have to go to ancient times. Sir, it means basically means freedom to practice one religion or any particular customs which are there in a religion. And sir, one more thing is like it was clearly written in the first passage that Article 44 states that a state shall try to secure and implement UCC in Indian territory throughout the Indian territory. It means that eventually in Constitution it was clearly written कि we should carry out or we should implement UCC in Indian territory. Uh, However, it was kept in DPSP in Article 44, but it was considered to be the part of fundamental rights earlier. Uh, but later, it was the decision for that was quashed later. तो लीगल प्लुरलिज्म को you did not explain well. कोई और करेगा? Actually, Anybody? Kavis, will you explain this word? Yes, sir. From this passage, I understood that it refers to different religions, practices, and customs. नहीं, So, मतलब वो तो ठीक है, yes. दैट्स अ काइंड ऑफ प्लुरलिज्म ऑफ सोसाइटी। लीगल प्लुरलिज्म मतलब कि लीगल राइट्स मिले हुए उनको टू प्रैक्टिस इट। सो Okay. जस्ट नीड टू ऐड द इम्पैक्ट ऑफ दिस वर्ड आल्सो, लीगल वर्ड को भी, ठीक है। चलो ठीक है, सो एनफ अबाउट दिस पैराग्राफ। आई थिंक एवरीबडी गॉट व्हाट आर द की पॉइंट्स और की टॉपिक एंड डिबेट। एक चीज और मैं बोलूंगा कि दिस पैराग्राफ इज also coming up as a debate between the government
बिकॉज ये अभी करंट सिचुएशन की बात हो रही है वेयर गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर यूसीसी एंड अपोनेंट और अपोजिशन, मतलब सम माइनॉरिटीज, representative of some minorities or oppositions is not ready to accept the current form of UCC which is being pushed for from the government side. तो एक उस डिबेट को भी ये रखता है. इट्स नॉट अ वेरी इंडिपेंडेंट आर्टिकल, ये मॉडर्न टाइम, मॉडर्न नहीं मतलब जो करंट पॉलिटिकल इश्यूज को कवर करता हुआ ये एक पैराग्राफ है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन पार्ट. And in first, at first you will just tell me what they are asking. ठीक है. बाद में we'll decide कि how will you structure our answer. तो ये क्वेश्चन है, critically reflect on the aspects of legal pluralism in India and debate and the debates on the merits and demerits of implementing the uniform civil code in contemporary India. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का मतलब बस समझाना है कि व्हाट दे आर आस्किंग. ये मैं पूछूंगा सोची से. सोची, यू टेल. सर इसमें उन्होंने बोला है कि लीगल प्लूरलिज्म के इंडिया के अंदर जितने भी वेरिड एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके इंडिया में कंटेम्प्रेरी इंडिया में स्पेसिफिकली अगर यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को लेकर के जो डिबेट है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उसको वो करना है. ठीक ठीक है, बहुत हद तक ठीक है, बहुत हद तक क्या एक ठीक ही है. बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू राइट योर ओपिनियन, प्योर एस्पेक्ट ऑफ आंसर कि तुम मेरिट या डिमेरिट्स क्या सोचते हो. यहाँ पे तो जो डिबेट्स हैं मेरिट एंड डिमेरिट्स के, जो बात की जा रही है उसी पे आपको अपनी बात रखनी है कि द गवर्नमेंट इज गिविंग द मेरिट्स फॉर यूसीसी इज दिस एंड व्हाट यू थिंक ओवर दैट पॉइंट. And at the same time, opposition is making this or claiming that this will be the flaw. Yeah, this is the flaw in this debate. तो फिर आप उसके ऊपर रख सकते हो. शिक्षा बताओ क्या कह रहे हो. सर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई मतलब इंस्टेंस है दैट कैन पुश फॉरवर्ड टू वट एवर वी आर ट्राइंग टू साइट एज अ डीमेरिट ऑफ यूसीसी और अ मेरिट ऑफ यूसीसी, तो हम वो एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं. हाँ, एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, बट दैट शुड बी दैट शुड नॉट बी वेरी, वो एक्सेप्शनल केस नहीं होना चाहिए. इट शुड बी मतलब उसको जनरलाइज किया जा सके. सर मतलब आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या मैं ये चीज ऐड कर सकती हूँ कि नहीं, तो कैन आई गिव यू व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑफ एडिंग इन द बिल्कुल आंसर. बताओ, बताओ. सर जैसे कि इफ आई एम ट्राइंग टू राइट द मेरिट्स ऑफ यूसीसी, आई एम नॉट ट्राइंग टू हाईलाइट माई व्यू पॉइंट्स, बट आई जस्ट वांट टू पुश फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेरिट्स ऑफ यूसीसी इज दैट बाय मेंशनिंग द शाहबानो केस. हम्म. सो कैन आई मेंशन दैट? हाँ, कर सकते हो, हिस्टोरिकल फैक्ट है ना. आप उससे क्या, लेकिन पॉइंट ये है ना कि यू डोंट हैव टू पोस्ट द मेरिट और डिमेरिट. ओके सर. यू नीड टू राइट कि जो डिबेट्स हैं, मतलब जो करंट डिबेट चल रही है ना, उसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या दिए जा रहे हैं. हाँ सर, लाइक मेरिट एंड डीमेरिट दोनों ही लिखा जाएगा, बट अगर नहीं, कुछ वो किसी चीज. मतलब इट्स नॉट, दीज मेरिट्स और डिमेरिट्स इज नॉट कमिंग फ्रॉम माय साइड, इट इज कमिंग फ्रॉम ओके द सर. डिबेट विच इज हैपनिंग. ओके सर. ठीक है. अब इसके ऊपर मैं क्या सोचता हूँ. So, out of all these merits, I may consider one of these merits is not actually merit, but it is a kind of demerit. Or any of the demerit which people are giving, I may consider that as an merit of that ECC. तुम समझ रहे हो ना. जैसे मान लो कि मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि हम स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखते हैं, तो कई सारी स्ट्रेंथ लिख दिया और कई सारी वीकनेस लिख दिया. बट somebody will say कि the strength that you have written is actually not a strength, it's a weakness for you. Or the weakness that we have written here, it's not a weakness, but it's kind of strength for you. तो मतलब this you can also, ये आपका वाला एनालिसिस होगा. ठीक है. तो मतलब एक एंड में कंक्लूजन पार्ट आएगा जहाँ पे हम दोनों का कंपेयर करके लिख रहे हैं. आप with writing every merits you can write the write your opinion on that. ओके सर. है ना. तो बेसिकली इस क्वेश्चन इसके दो पार्ट्स हो गए कि क्रिटिकली रिफ्लेक्ट on the aspects of legal pluralism in India
यहाँ पे लीगल प्लुरलिज्म के जो एस्पेक्ट्स आपको पता हैं, कुछ आप पैराग्राफ से भी फेच कर सकते हो, कुछ अपने एंड से भी आपको पता है तो डाल सकते हो, और उसको आपने लिख दिया कि इंडिया में ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आपको बता देना है कि ऐसा क्यों है, या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, दैट यू कैन ऑल्सो राइट। बट दीज आर द एस्पेक्ट्स जो आपको पहले लिखने हैं। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूशन नाउ। ठीक है, एस्पेक्ट्स लिखने हैं और उस पर आपको अपना ओपिनियन देना है। तो आपने ऐसे लिखा कि इसके लिए ये लॉ बना हुआ है, या ये ऊपर से भी आप ले सकते हो, एंड व्हाट यू थिंक ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ दैट लीगल प्लुरलिज्म ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा कि द डिबेट्स दैट इज डिबेट्स ऑन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, तो उसके मेरिट्स को आइडेंटिफाई किया, जो डिबेट्स में चल रहे हैं, डिमेरिट्स भी आइडेंटिफाई किया, जो लोग बता रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स व्हाट पीपल आर सेइंग, एंड देन वी आल्सो रोट अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट दोस। मतलब यू विल आल्सो राइट अबाउट व्हाट यू थिंक्स अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। ये समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो कि डिबेट मेरिट्स लिखने हैं तो क्या क्या लिखोगे? व्हाट पीपल आर सेइंग इज Sir, It promotes gender equality. हाँ, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, ये आपने मेरिट्स में लिखा। तो इस पे हो सकता है कि इन वाइल राइटिंग इट इन जेंडर इक्वलिटी यू मे गो अगेंस्ट द पॉइंट, वो आपका अपना होगा। समझ रहे हो स्नेहल? Yes, sir. हाँ, तो आपने मेरिट्स, तो डिबेट में ये मेरिट्स में है। ठीक है, लेकिन मे बी यू मे थिंक दिस एज, मतलब दिस मतलब ये पूरा होलसम मेरिट्स में नहीं काउंट करो तुम। हो सकता है तुम्हारे ओपिनियन से इट मे नॉट बी अ वेरी ग्रेट थिंग टू अचीव, तो ऐसा हो सकता है। मतलब आई एम नॉट सेइंग अबाउट द जेंडर इक्वालिटी, आई एम सेइंग एनी ऑफ द मेरिट्स दैट यू थिंक कि भले ही गवर्नमेंट उसको मेरिट्स में काउंट कर रही है, बट आई माइट नॉट टेक और कंसिडर दिस एज अ मेरिट ऑफ यूसीसी। समझ रहे हो ये बात को? समझ रहे हो कि नहीं? एक ये क्वेश्चन भी हो सकता था कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ यूसीसी। ये क्वेश्चन अलग होता, इसमें आप इंडिपेंडेंट थे विथ योर ओपिनियन, विथ योर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट यू विल राइट फॉर द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ फॉर एंड अगेंस्ट फॉर यूसीसी। यहाँ पे ये है कि आप पहले जो चल रही है डिबेट उससे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स निकालिए कि ये लोग बोल रहे हैं, एंड व्हाट आई थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। So how will we frame that? बस ऐसे ही जैसे मैंने मैप किया है। कि पहले लिखा कि it will promote gender equality, but I think कि but another aspect of it कि उसको उस तरीके से फ्रेम कैसे करेंगे उन सेंटेंसेस। मतलब इफ यू हैव एनीथिंग टू से, जैसे देखो जेंडर इक्वालिटी तुमने बोला कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी। ठीक सर है, मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे इसमें एक जो काफी बड़ा सब लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम लॉ के अंदर जो डिवोर्स और मेंटेनेंस वगैरह जो होता है वो काजी डिसाइड करते हैं, ना कि कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। वंस इट कम्स अंडर यूसीसी, कोर्ट्स उसको एस्टैब्लिश करेंगे और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी पूरी प्रोसेस। बट उसका एक डीमेरिट वे कि राइट नाउ डिवोर्स एंड एवरीथिंग इज वेरी चीप और बहुत कम टाइम में सब कुछ हो जाता है। लेकिन अब अगर वो यूसीसी के अंदर आ जाएगा, कोर्ट सिस्टम के अंदर आ जाएगा, तो इट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव। और जो गरीब तबका है, स्पेशली बिकॉज मुस्लिम हाँ, तो तुम एग्जैक्ट यही मैं बोल रहा हूँ कि तुम उस पॉइंट को तो मेरिट में लोग बता रहे हैं, द डिबेट हाँ इज, बट यू फाइंड देयर इज अ फ्लॉ इन दैट आल्सो, हाँ। तो वो यहाँ पे लिखना है और वो तो तुम। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर जैसे ये पूरा जो है कि दिस इज मेरिट और ये मुझे उसका डिमेरिट लगा, मैं उस पूरे सेंटेंस को लेकिन स्ट्रक्चर कैसे करूंगी? इन वॉट एवर वे, मतलब ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, क्योंकि फिर तो वो बहुत रोबोटिक हो जाएगा ना, मतलब इट्स नॉट वेरी एलोरिथमिक। तो आपने लिखा कि द मतलब इन रिसेंट टाइम्स वी हैव बीन सीइंग लॉट ऑफ डिबेट ओवर द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ यूसीसी, एंड आई विल बी लिस्टिंग फ्यू दैट पीपल हैव बीन गिविंग और गवर्नमेंट हैज बीन गिविंग फॉर द मेरिट्स ऑफ यूसीसी। तो आपने पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिखा, और उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा कि दिस पॉइंट हैज गिवन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, but in my opinion this can also be
the issue with this particular merit. ओके ठीक है, तो वैसे करके आपने लिखा, और फिर इसी तरह से डिमेरिट्स लिखोगे तो उसमें भी लिखोगे ये डिमेरिट बता रहे हैं जो ऑपोजिशन है, बट द थिंग इज कि इसके साथ ये एडवांटेज आएगी। समझ में आ रहा है? यस सर हम्म। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब आपका ये स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया, तो इस स्ट्रक्चर में किसी को प्रॉब्लम्स नहीं लगता? एनीथिंग यू वांट टू से? Yeah, no, sir. हम्म Sir, one thing I have to add in demerits. For हम्म example, I think that okay, it is from political side or religious right or freedom to religion. उसमें थोड़ा demerits लिख दिया. And हम्म one more point, if I have to say that implementation complexity means हम्म। if once it is implemented, what about ongoing cases which are already there? मतलब टाइम टू एडेप्टेबिलिटी लगेगा ना, तो दैट ये कम्स एज अ तुम डीमेरिट. इसको कहाँ They पे think डालोगे? about active डिमेरिट्स में? professionals too. Yeah, demerits. हाँ, तो बेसिकली ये डिबेट में तो अभी नहीं है, मतलब वी हैव नॉट बीन सेइंग इट इन डिबेट, है ना? ये हो सकता है तुमने सुना होगा, Mm-hmm. बोल सकते हो पीपल आर आस्किंग दिस, और या यू कैन ऐड इट एज एन योर पॉइंट आल्सो कि विद दिस लिस्ट ऑफ Mm-hmm. डिमेरिट आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड दिस वन। Okay. Okay. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी Mm-hmm. आप देख रहे हो जो यू हैव नॉट सीन और रेड एनीवेयर। ठीक है, Mm-hmm. आप सारे डिमेरिट्स लिखने के बाद यू कैन राइट कि विद दिस लिस्ट व्हाट अपोनेंट एंड अपोजिशन पार्टी इज गिविंग, आई वुड आल्सो लाइक टू वन मोर टू दिस लिस्ट इज दिस। Okay. ठीक है, Mm-hmm. और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? Third question था. हम्म So let's say gender is one of the merits or demerits. Is it okay to write, let's say, title gender and then proponents argue whatever and then opponents argue whatever? So in that manner, we're covering merits and demerit both. But is it necessary to add what you think about it, or is it okay to just cover the debate? तुम्हारा इट इज वेरी नेसेसरी टू ऐड व्हाट यू थिंक अबाउट इट। Probably you Okay. are accepting the merits that they are giving, or maybe you are not accepting कि this is not coming out as a merit for you. असली क्वेश्चन ही वही है, ठीक है सर. मतलब द रियल क्वेश्चन इज दैट ओनली, क्योंकि फिर अगर हम नॉर्मली ऐसे पूछ लें तब तो फिर वही हो गया ना कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, तो आप चाहे मीडिया से निकाल के लाओ चाहे अपने तरीके से बताओ। समझ रहे हो ना? तो वो तो अलग क्वेश्चन होता है, दैट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ तो बेसिकली आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट थिंक्स या पीपल हु आर प्रोपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ थिंक्स दिस एज अ मेरिट ऑफ दिस लॉ, है ना? आई एम एग्रीइंग विद दिस, आई एम एग्रीइंग विद दिस बिकॉज ऑफ दिस, बट आई डोंट एग्री विद दिस, या आई सी अ लूप होल इन दिस पर्टिकुलर मेरिट। ऐसे करके जब तक आप अपना वाला नहीं लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये जो इंटायर एक्सरसाइज है, इट इज टू नो योर वे ऑफ थिंकिंग। हाँ, लेकिन वो स्ट्रक्चर अपनी दे रहे हैं कि आप ऐसे सोच के ऐसे बताना है। यू आर नॉट वेरी इंडिपेंडेंट टू थिंक कि हमको तो ये अच्छा लग रहा है तो हम यही लिखेंगे। तो एवरी टाइम मैंने कई बार बताया है कि जो सब्जेक्टिव राइटिंग में वन ऑफ द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर इज कि आप क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ो, कि यू कैन सी एवरी, जो हम लास्ट क्लास में भी बात कर रहे थे कि एवरी क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ आंसर दैट इज रिक्वायर्ड इन दैट रूब्रिक। रूब्रिक भी मैंने समझाया था कि इन व्हाट वे दे विल मार्किंग यू। अब ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि दे मस्ट हैव थॉट कि भाई इस पॉइंट पे, एस्पेक्ट वाले पॉइंट पे हम आपको 10 नंबर देंगे, ठीक है, एस्पेक्ट वाले पॉइंट पे 10 नंबर देंगे, एंड अदर बाकी सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर के लिए इस पे 10 नंबर और इस पे 15 नंबर देंगे। तो आपको अगर ये नहीं समझ में आएगा कि ये 2 पार्ट है, तो हो सकता है आप एस्पेक्ट लिखो और यहाँ पे आप उस तरह से ना लिखो तो आपको 3-4 नंबर देके छोड़ दिया, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, आपको एवरी क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ आंसर दैट शुड बी देयर। जो आपको लगता है कि क्वेश्चन सेटर ने ये जरूर पूछा है, लगता है क्या वो तो जब लैंग्वेज में है तो दैट इज मतलब एक्सप्लिसिट इन दैट क्वेश्चन
कि आपको पता चलना चाहिए। हाँ, ये है कि कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट की तरह ये लिखते हैं कि जल्दी आपको समझ में ना आए, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 2-3 बार पढ़ के ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन है क्या, उसके कितने पार्ट्स हैं, वो कहाँ पे आपका ओपिनियन मांगता है, कहाँ पे आपकी एनालिसिस मांगता है, ठीक है, और उसको किस मतलब कितने उसमें रखना है, मतलब इन व्हाट डायमेंशन यू नीड टू कीप, और उसके लिए वो आपको पैराग्राफ जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आप लोग अब इस